So very good morning to all of you. Today we are going to discuss about your questions of TPP of M23, right? And today we are going to finish this chapter. Yes. So till question 24 or after that in any question, if you are having doubt, tell me yes. I got 30, 32, 33, 40, 41, 49 and 50. Wait, first let me write these numbers. So you are having doubts in 30, 32, 33, 40, 41, 49, 50. Okay, 37 as well. 37. Okay, so one by one we will import those questions and we'll see. So first let me import question number 30. You are having 55 questions, right? Okay. Okay, 47 as well. Wait. So isn't it your question number 30? Let's see. This is your question number 30. Now, yes, 47, 54, 55. Wait. 47, 54, 55. Now tell me about this. Okay. Okay, how many of you are having doubt in question number 30, right? Let us see this question number 30 first. If P of X 37, 41, 45, 51, 37, 41, 45 and 51. Okay. Now, okay. Let P of X be a polynomial of least degree whose graph has 3 points of inflection. Okay, no problem. I think ये क्वेश्चन हर्षा ने पहले पूछा था एज अ डाउट. ओके, तो पी ऑफ एक्स आपके पॉलिनोमियल है लीस्ट डिग्री की जिसके 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है -1, -1, 1, 1 and point with abscissa 0 at which the curve is inclined to the axis of abscissa at an angle of 60 degree. Then the value of integral 0 to 1 px dx. Right? आपको integral 0 to 1 px dx फाइंड करना है. So पहले तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी ना. What do you mean by point of inflection? कौन बताएगा point of inflection? Just raise your hand. ये सारी चीजें हम देख चुके हैं. Right? Tell me, what do you mean by point of inflection? Points where function changes its sign. Okay. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए आप क्या कह सकते हो? सी, इफ योर फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स. यस, आपको याद हो हम क्या करते थे? राइट, आपको पूरा चार्ट दिया था मैक्सिमा मिनिमा में. यस, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके हम पहले आपके पॉइंट्स फाइंड करते थे. यस, ओके. फिर उसके बाद अगर आपका एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, दैट मीन्स वो आपका मिनिमा है. एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है फॉर पर्टिकुलर एक्स आई, वो आपका मैक्सिमा है. राइट, because f double dash x less than 0 or greater than 0, this is your curve like this, वो पॉइंट के विसिनिटी में. राइट, f double dash x less than 0 तो समथिंग लाइक दिस, वो आपका मैक्सिमा होगा. एंड इफ f double dash x इक्वल टू 0, राइट, तो वो उसका साइन चेंज करेगा, आपका फंक्शन का साइन चेंज होगा, यू टर्न लेगा. राइट, ये लाइक दिस. एक आपको एक्स क्यूब का एग्जांपल दिया था. तो इसके जो रूट्स होंगे that will give you point of inflection. Right? अगर याद नहीं है तो ये वाला चार्ट हमने देखा था, याद आया? फिर ये वाले पूरे चार्ट को हमने आगे मॉडिफाई किया था n, n+1 सारी पावर्स के लिए. ओके, सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वेयर योर कर्व चेंजेस इट्स साइन. राइट, एक्स क्यूब के लिए कौन सा था वो? x इक्वल टू 0 और नॉट. तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x², फिर उसका नेक्स्ट डिफरेंशियल 6x इक्वल टू 0, तो x आपको 0 मिल रहा था वहां पे. ओके,
चलो अब यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट, मतलब वहां पे आपका पी डबल डैश एक्स जीरो होना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट पे? तो एक आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि p double dash of -1 will give you 0, p double dash of 1 should give you 0, and p double dash of 0 should give you 0। और आपको ये सारे नंबर्स पैर में दिए गए हैं with -1, right? What they have given you value -1, with 1 it is having value 1, p of -1 is 1, p of 1 is 1, right? and 0 पे वो आपका क्या हो रहा है समझना। जीरो इज एब्सिसा, तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आपको याद है, राइट, एक्स कॉमा वाई, हाँ, जिसके ऊपर आपका एक डाउट पेंडिंग है, राइट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो आज आज आपके सारे डाउट्स मैं देख लूंगा, राइट, आज राइट, आई विल गेट 1 आवर टुडे, तो मैं पूरा देख लूंगा। सो एब्सिसा इज योर एक्स ऑर्डिनेट, मींस एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इज योर वाई कोऑर्डिनेट। सो हियर and the point with abscissa 0, right, your x coordinate is 0. So what about y coordinate at an angle of 60 degree? Will it be your tan 60? Okay, at which the curve is inclined to the axis of abscissa at 60 degree. Are you getting my point? Okay, तो अगर 0 पे आपको उसकी वैल्यू चाहिए तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। Okay, 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 Harsha, I will add that point in my doubt list. Okay, I will also check. Let me add that. This is of class 11, this is class 12. Okay, I'll check about 0 to the power 0. Okay, now, yes, that is all things I'm asking to you, right? See, tell me, if it is making 60 degree, what can you say about this? What can you say about p of 0? First tell me this. Okay, right, yes, so yes, y आपका tan 60 नहीं होगा, उसका स्लोप tan 60 होगा। Okay, slope of your curve, see, right, अगर आप यहाँ पे स्लोप फाइंड करोगे विद एब्सिसा एट 0, okay, the curve is inclined to the axis of abscissa at 60 degree, okay, at an angle of 60 degree। that means वो 0 पे अगर आप कर्व प्लॉट करोगे, राइट, और उसको जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट आपकी एक्सिस ऑफ एब्सिसा, मतलब एक्स पॉजिटिव एक्सिस का 60 डिग्री बना रहा है। तो स्लोप एट 0 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। टेल मी, यस और नो? ओके, आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको एनालाइज कर रहे हैं। सो स्लोप इज नथिंग बट p डैश x, p ऑफ x का, और p डैश 0 विल गिव यू tan 60 डिग्री। इतनी चीजें हमारे पास है। ओके, और p ऑफ x के बारे में आपको बोला गया है, p ऑफ x भी है पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री, मतलब उसकी आपको लीस्ट डिग्री फाइंड करनी है। यस, उससे उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ओके, चलो कैसे शुरू कर सकते हैं? So since yes, so Abin is telling that, sir, can we write p double dash x as x into x plus 1 into x minus 1, right? Why? See, because उसके point of inflection है, right? समझना, p double dash x equal to 0 के roots कौन से हैं? Roots of this equation as points of inflection are -1, 1 and 0। तो वो अगर उसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स विल, कैन आई राइट दिस एज योर पॉलिनोमियल? क्या वो आपकी पॉलिनोमियल हो सकती है? अब सिंस आपको क्या बोला गया है, p ऑफ x आपकी लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल हो सकती है, राइट? हो सकता है कि इसके अलावा और इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो, राइट, बट सिंस हमें बस इतना दिया गया तो हम यहीं से शुरू करेंगे। ओके, और p ऑफ x की जितनी मिनिमम डिग्री जो वो हमें फाइंड करनी है। बट अगर आपको याद हो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या फर्क है, अगर जब आपने इक्वेशन पढ़ी थी फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर रूट से आपको लिखना है तो डायरेक्ट x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0 लिख देते हैं,
बट यस, बट अगर आप उसको पॉलिनोमियल एज्यूम कर रहे हैं तो आप एक कोएफिशिएंट लेते थे, दैट कोएफिशिएंट वाज के ए समथिंग, राइट? क्योंकि सिंस वो पॉलिनोमियल है तो वहां पे कोएफिशिएंट मैटर करता है, इक्वेशन में तो वो डिवाइड बाई 0 डिवाइड बाई के 0 हो जाएगा, isn't it? Please give me some response. तो क्या के ले सकता हूँ मैं कोएफिशिएंट? एवरीवन? यस, यस। सो पी डबल डैश एक्स हम क्या करेंगे, सपोज के और ए, के इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ओके, इक्वल टू पी ऑफ एक्स नहीं, ये आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पी डबल डैश एक्स के दिए है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स, समझना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये पी ऑफ एक्स के हैं, दैट मीन्स ये किसके रूट्स हैं, ये रूट्स हैं पी डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 के, ओके। अगर आपको ऐसा बोला होता कि पी ऑफ एक्स के रूट्स हैं तो हम डायरेक्टली कर लेते, ओके। नाउ नेक्स्ट, so therefore p double dash x is equal to k, now x into x plus 1 x minus 1, that is x square minus 1, so therefore p double dash x is equal to k x square into x, x cube minus x, p double dash x is equal to k x cube minus x, is it clear students? now अब p डबल डैश के बाद क्या मैं p डैश फाइंड कर सकता हूँ पहले, फिर उसका इंटीग्रल करके, हाँ या ना, ओके। So here p dash x is equal to integral p double dash x dx. Okay, integral p double dash x, that is k x cube minus x dx, which is equal to k x to the power 4 by 4 minus x square by 2, and once integral is over I can add plus c. So this is my p dash x. ओके, बट सी मुझे फाइंड करना है, तो पी डैश एक्स के लिए एक चीज है हमारे पास, पी डैश 0 इक्वल टू 1060 और नॉट, 1060 इज 10 पाई बाई 3, दैट इज रूट 3, कैन आई यूज दिस रिजल्ट नाउ, पी डैश 0 इक्वल टू रूट 3, तो उससे मुझे सी मिल जाएगा स्टूडेंट्स, यस। सो therefore p dash 0 is equal to k times 0 minus 0 plus c implies p dash 0 equal to c. हाँ, यस यस यस, संडे आपका एमटी है तो चैप्टर टेस्ट ये वीक में रख दें, एट व्हेन यू विल लाइक टू गिव चैप्टर टेस्ट, फ्राइडे और सैटरडे, ओके, फ्राइडे और सैटरडे M23, okay, 2 students are telling Saturday and 1 student is telling Friday, tell me quickly or I can create a poll, okay, okay, wait, I am creating a poll, okay, I am sharing you this, okay, give your answer in this poll, okay, so that everyone can see this, Friday and Saturday, give me quickly, M23 exam, right, Friday or Saturday, do it quickly. फ्राइडे और सैटरडे स्टूडेंट्स, ओके, पोल कर दिया, सो 13 स्टूडेंट्स ने आंसर किया, व्हाट अबाउट, डू इट क्विकली, बाकी सब सो रहे हैं लग रहा है, ओके, सो आई एम एंडिंग दिस पोल एंड you can share see its results.
So 8 students are telling Saturday and 5 students are telling Friday. Okay. तो डेफिनेटली अब मुझे रखना पड़ेगा सैटरडे. ओके. सो सैटरडे कौन सा टाइम में अनलॉक करूं? 10 to 11. तो 11 बजे से फिर क्लास होते हैं. आपका शायद मेरा दोपहर के, तो 11 में आपका नहीं होता है ना? ठीक है, तो सैटरडे 10 बजे मैं अनलॉक कर दूंगा, फिर आप अपने हिसाब से दे दो एग्जाम. ओके. 10 to 12. So Saturday we will take this exam between 10 to 12. Okay. Is it clear? सेशन सर में टेक द क्लास. ओके. हाँ, तो 11 बजे क्लास लेंगे ना सेशन सर? उससे पहले आप एग्जाम दे दोगे कि और कोई टाइम रखें? चल में जल्दी जल्दी बोलो, तो उस हिसाब से करेंगे. भाई इवनिंग ठीक है. ओके. तो मैं ओके मैं 5 बजे अनलॉक कर दूंगा. ओके. इवनिंग वी आर बिजी, वी हैव इंग्लिश क्लास. मैं अनलॉक कर दूंगा 10 बजे, जिसको जब देना है दे दूं. ओके. चलो, तो यहाँ सी आपको क्या मिलेगा? राइट. सो पी डैश 0 वॉज 1060. 1060 इज √3. √3 इक्वल टू सी. सी आपका हो जाएगा √3. इज इट क्लियर एवरीवन? राइट. फाइल अनलॉक. आप जब भी फ्री हो देते हैं. सी इक्वल टू √3. सो इफ आई पुट वैल्यूज ऑफ दिस सी, so therefore p dash x is equal to k x to the power 4 by 4 minus x square by 2 plus √3. yes. okay. हाँ, yes yes. and हाँ यस राधिका, ऐसा ही रहेगा. अनलॉक रहेगा पूरे दिन. सुबह 10 बजे के आसपास मैं कर दूंगा अनलॉक, या 11 बजे. ओके, 11 बजे कर दूंगा. 11 बजे बेस्ट रहेगा. नाउ विष्णु इज आस्किंग सर व्हाई वी हैव टेकन के. समझो यहाँ पे. ओके. सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है विष्णु. राइट. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4. राइट. सपोज आई एम टेकिंग हियर प्लस 3x माइनस 4. कैन यू टेल मी रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्विकली? 4 के ऐसे फैक्टर्स निकालोगे माइनस करके 3 है. x प्लस 4 x माइनस 1. ओके, फैक्टर्स. राइट. हाँ यस. सो फैक्टर्स होंगे आपके प्लस 4 माइनस 1 एंड रूट्स हो जाएंगे -4 1. अब अगर मैं आपको कोई दूसरी पॉलिनोमियल दे रहा हूँ, सपोज q ऑफ x, राइट, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 4 2 नहीं. सी, यहाँ पे आगे भी 2 है. सो 8 2 16. 16 के आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे कि सबट्रैक्ट करके 6 आए, या बेटर कि सबसे पहले आप 2 कॉमन निकाल दें. नहीं, तो फैक्टर्स आप कहेंगे 8 and 2. राइट. तो अब वो 8 और 2 आप लोगे. राइट. यस. सो 2x स्क्वायर बेटर. ठीक है. 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 8. सो 2x कॉमन x प्लस 4 माइनस 2x कॉमन x प्लस 4. राइट. जल्दी से मैं माइनस कर दिया. सो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन. तो x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 2. 2 कॉमन निकाल दो. x प्लस 4 x माइनस 1. या अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर पहले ही 2 कॉमन निकाल दोगे तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 यही पॉलिनोमियल हो जाएगी. सो अगर आपके पास फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स से आपको पॉलिनोमियल बनानी है. ओके. फैक्टर से आपको फैक्टर्स फाइंड कर रहा हूँ, रूट्स नहीं फाइंड कर रहा हूँ. अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. आई एम नॉट फाइंडिंग रूट्स, आई एम फाइंडिंग फैक्टर्स. फैक्टर्स होते हैं पॉलिनोमियल के, रूट्स होते हैं आपके इक्वेशन के. मैंने इक्वेशन यहाँ पे बोला ही नहीं है. ओके. तो ये x प्लस 4 x माइनस 1 अगर आपके पास फैक्टर्स है तो वहां से पॉलिनोमियल आपकी बन सकती है p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 4 x माइनस 1 और 2 इंटू x प्लस 4 x माइनस 1. और आई कैन टेक एनी फैक्टर k इंटू x प्लस 4 x माइनस 1. आया ना? बट इफ आई वांट टू फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन p ऑफ x इक्वल टू 0 तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? -4 and 1. इफ आई वांट टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन q ऑफ x इक्वल टू 0 तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? -4 1. ओके. हाँ. नहीं, k कैन बी इंफिनिटी. मतलब आप समझ नहीं रहे हो. यहाँ पे आपके पास बहुत सारे
पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। बहुत सारी पॉलिनोमियल ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं जिनके फैक्टर्स x+4 और x-1 होंगे, दैट्स इट। और हाँ, के इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स आपके पास पॉसिबल है, तो उसमें आप ये नहीं ले सकते कि मैं के को इन्फिनिटी ले लूं तो क्या होगा। अरे के की वैल्यू बहुत सारी पॉसिबल है, ओके। बहुत सारी पॉलिनोमियल्स आपको मिलेंगी विच विल हैव सेम फैक्टर्स, इसलिए हम के लेते हैं। इज इट क्लियर? ओके। तो इसीलिए जब भी आपका इक्वेशन हो तो उसमें हम के नहीं लेते हैं, क्योंकि वो आपका जीरो ही हो जाएगा। फैक्टर्स हैं तो उसमें आपको के लेना है, ओके। सो पी डैश एक्स इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर 4/4 माइनस x² by 2 plus √3, okay. Now let us move forward towards p of x, okay। अब हमें p of x फाइंड करना है, okay। Yes, again integration, so now p of x is equal to integral p dash x dx, okay। So if I integrate this a constant, integral of x to the power 4, x to the power 5/5, sir, in p of x we will get again get a constant. What can we do here? Yes, तो p of -1 और p of 1 आपको दिया है ना, उसका यूज करेंगे। x³ by 3 प्लस √3x प्लस यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट मिलेगा, सपोज उसे c2 नाम दे रहा हूँ, ओके। इज इट क्लियर? इंटीग्रल, ओके। ये आपका हो जाएगा c2 ना। So therefore p of x is equal to k x to the power 5 by 5 4s are 20 minus x cube by 3 2s are 6 plus √3x plus c2। चलो अब अगेन आ जाओ क्वेश्चन पे। अब आपको कौन सी चीजें यूज करनी बाकी है? p of -1 इक्वल टू 1 एंड p of 1 इक्वल टू 1, और आपके पास अननोन्स कितने हैं? 2, k एंड c। So p of -1 is also equal to 1, right? And p of 1 is also equal to 1, दोनों पे आपका आंसर सेम है। Now p of -1 is equal to 1. So therefore, if I put first p of -1, p of -1 है, okay, wait, लिखने में गलती हुई। हाँ, yes, -1 है, ध्यान दो, राइट। सो रीड क्वेश्चन केयरफुली। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन से हम यहाँ पे गलत लिख देते हैं, सारी प्रोसीजर राइट होती है और हमारे मार्क्स चले जाते हैं। So just take care in this as well. ओके, आई थिंक प्लेन लैंड हुआ अभी, उसी का आवाज आ रहा था। आपको आया क्या? -1 to the power 5 -1/20 और -1³ अगेन -1, तो +1/6 minus √3 plus c2, ओके। अच्छा, विष्णु बोल रहा था लैंडिंग का नहीं है, उड़ने का आवाज है, टेक ऑफ का आवाज है, ठीक है। ऐसी एक वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने, एल शेयर, वो लैंडिंग का था। सो चलो अब इधर, तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करूँ तो -1 इज इक्वल टू के, सो 20 और 6 का एलसीएम 60, राइट। हाँ, 120 लेके भी कर सकते हैं, नो इशू। सो 23 are 60 plus 6 10s are 60 होल डिवाइड बाई 60, -√3 को पहले इधर भेज देते हैं तो +√3 हो जाएगा, एंड ये आपका प्लस c2। सो 10 minus 3 is 7, so therefore √3 - 1 is equal to
7/60k or 7k/60 plus c2. So 3 minus 1 is equal to this. ओके, और ये येलो मार्कर ऐड किए. ओके, कैसा लग रहा है? ये आपके जूनियर्स, अल्टीमेट जूनियर्स क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया. ये आपका लाइट ग्रीन और वाइट यूज कर रहा था, एंड दे टोल्ड मी टू यूज दिस एज वेल. ओके, नेक्स्ट. अब p of 1 equal to 1. So if I take p of 1 equal to 1, right, so here p of 1 is equal to k 1/20. थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे. -1/6 plus √3 plus c2. Okay. Okay. So therefore p of 1 is 1, k same LCM 3 minus 10 divided by 60 प्लस √3 को इधर भेज देंगे तो -√3 हो जाएगा प्लस c2. ओके, ये आपका हो जाएगा 1 minus √3. So therefore 1 minus √3 is equal to k minus 7/60, right? So minus 7k/60 plus c2 is equal to 1 minus √3. आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है. चलो कैसे फाइंड करेंगे? चल मैं एक तो देख के ही पता चल रहा है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे c2 मिल जाएगा, राइट? हाँ, -7k/60 प्लस 7k/60 कैंसिल, या सब्ट्रैक्ट करोगे तो k मिल जाएगा. okay. So if I apply 1 plus 2 √3 minus 1 plus 1 minus √3, तो √3 minus √3 कैंसिल, 1 minus 1 कैंसिल, 0 हो जाएगा. √3 minus 1 1 minus √3, 7k/60 minus 7k/60 0 plus c2 which is 2c2 implies c2 equal to 0. Now if you put c2 equal to 0 in any one of the equations, suppose I am putting in equation number 1, so √3 minus 1 is equal to 7/60k. So k is equal to 60 into √3 minus 1 by 7. Okay, now what is our aim? कितना लंबा क्वेश्चन है, राइट? अभी अभी हमारा काम भी खत्म नहीं हो रहा, ये तो बस हमें k मिला है, राइट? यस, what we need to find is integral 0 to 1 p of x dx. Okay, चलो तो p of x का हम कहाँ पे पहुंचे थे? What is your p of x, right? Your p of x is this. So we'll put values of k and c2 in this p of x, then we will find its integral. So this is your p of x. Okay, so let us put value of k and c2 in this p of x. Okay, so now p of x is equal to this. So I can say p of x is equal to 60/7 √3 minus 1 x to the power 5/20 minus x cube by 6 plus √3x plus c2 equal to 0 or not? Tell me, क्या c2 आपका 0 हो जाएगा? Okay. So therefore p of x is equal to 60/7 √3 minus 1. बस एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि है तो कांस्टेंट ही. ओके, एलसीएम ले सकते हैं बट रहने दे क्योंकि इंटीग्रेशन ही करना है. x to the power 5/20 minus x cube by 6 plus √3x. Now we need to find integral 0 to 1 p of x dx. Now integral 0 to 1 p of x dx is equal to 60/7 √3 minus 1 integral 0 to 1
x to the power 5 by 20 minus x to the power 3 by 6 dx plus root 3 इंटीग्रल 0 to 1 x dx. पहले जो आपके कोएफिशिएंट थे वो बाहर निकाल दिया. So this is equal to 60 by 7 root 3 minus 1. Now x to the power 5 का इंटीग्रल x to the power 6 by 6 x cube by 6 x to the power 4 by 4 limit 0 to 1 plus root 3 x square by 2 limit 0 to 1. So this is equal to 60 by 7. हाँ बस बाकी का कर लोगे आप. अब तो आसान है राइट. 1 माइनस 0 बस करना है. 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा. 1 by 20 into 6 minus 1 by 6 into 4 प्लस रूट 3 हाफ माइनस 0 तो हाफ ही हो जाएगा राइट. फिर अब इतना सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो. यस और नो हो जाएगा. ओके एवरीवन राइट. सो यस दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 30. एक बार रिपीट करूं. ओके या मैं सिर्फ प्रोसीजर रिपीट कर देता हूं फटाफट समझो. बड़ा क्वेश्चन था. घबराने की जरूरत नहीं. जस्ट स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है ऐसे क्वेश्चंस में. if p of x be a polynomial of least degree whose graph has 3 points of inflection this and this. तो अगर 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उसका ग्राफ तो p डबल डैश -1 0 p डबल डैश 1 इक्वल टू 0 एंड p डबल डैश 0 इक्वल टू 0. मतलब आपके p डबल डैश x के 3 रूट्स आपको पता है. वो रूट्स है -1 1 0. वो रूट्स को आपको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा आपका x x -1 x + 1. तो p डबल डैश x आपका हो जाएगा k इंटू x + 1 x - 1 इंटू x. दिस इज योर पॉलिनोमियल. अब वो पॉलिनोमियल के लिए आप उसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो विल गेट दिस. आपको p of x की तरफ आना है. सो फर्स्ट इफ यू फाइंड p dash x, so p dash x is integral of p double dash x and you will get one constant, more constant c here. How you can solve this all constants? By the initial condition which is given with for -1 p is -1, for 1 it is 1, and your slope, right, they are telling that at abscissa x equal to 0, when abscissa is 0 your curve is making 60 degree with angle of with axis of abscissa, right. It is making 60 degree with axis of abscissa. That means its slope at point 0 is 60 degree, tan 60 degree, which is root 3. So here if I use that condition p dash 0 equal to root 3, I can get value of c as root 3. So this is my p dash x. Since I want p of x, I will again integrate it and I'll get one more constant c2. How I can solve these constants? P of -1 equal to -1 and P of 1 equal to 1, I will get two equations. And after using method of elimination, if I directly add and subtract these two equations, I can get C2 and K. And once I have achieved these values of C and K, my P of x polynomial will be like this. And after that, I can find integral 0 to 1 P of x dx. Okay. Now next question. Sir, when indefinite integration is given, we can find f of x by differentiation. How to find f of x when definite integration is given? See. That means, Harsha, when indefinite integration is given, means from definite integration is a particular value. Suppose b minus a by 2, right? So from this value, you want to find value of function, right? Therefore, which function we should have value this, right? Okay, no, we cannot find like that because one value correspond to so many functions, right? ऐसा नहीं है कि वो आपका एक ही फंक्शन के लिए होगा, ये फंक्शन के लिए पर्टिकुलर a to b में होगा. वही सेम वैल्यू कोई दूसरे फंक्शन के लिए भी मिल सकती है, कोई दूसरे रीजन में भी मिल सकती है, राइट. तो वो इस तरीके से है. तो वो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की वैल्यू से हम फंक्शन नहीं निकाल सकते. इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन मतलब वही चाहिए, उससे ही निकाल सकते हैं. okay. हाँ बट वो फंक्शन चाहिए ना. हाँ वो मैं अभी बता रहा हूँ. वो इवन आपने फिजिक्स में भी किया होगा. अब वो मैं बताता हूँ समझो. जैसे ये आपका इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन करके वो तो क्वेश्चन क्या हो गया. क्वेश्चन आपका ये हो गया कि p डबल डैश एक्स से सॉरी p डबल डैश एक्स से वेट 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 क्यों ऐसा हो रहा है. p डबल डैश एक्स हैंग कर रहा है. आपको ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है. जस्ट अ मिनट.
कर्सर कर्सर हैंग कर रहा है। भाई ओके, काम करता हूँ, राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी क्लोज दिस वन नोट एंड ओपन दिस वंस अगेन। ओके, नाउ सी हियर व्हाट आई वाज टेलिंग इज पी डबल डैश एक्स है आपके पास, राइट। अब आपको पी डबल डैश एक्स से पी डैश एक्स फाइंड करना है, okay. या पी डैश एक्स से पी ऑफ एक्स फाइंड करना है, अंडरस्टैंड दिस। तो पी डैश एक्स से जब भी आप पी ऑफ एक्स फाइंड करोगे, राइट, हाउ यू कैन फाइंड दिस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डैश एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट मिलेगा प्लस सी। वो कांस्टेंट को आपको बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो बाउंड्री कंडीशन आपको कोई भी दे सकते हैं, राइट, जैसे ये वाले क्वेश्चन में था हमारे पास पी ऑफ वन, पी ऑफ माइनस वन, राइट। उस तरीके से आपके पास बाउंड्री कंडीशन कोई भी हो सकती है। अभी अगर आपको बाउंड्री कंडीशन, आप एक काम कर सकते हो, राइट, यू कैन डू वन थिंग। अगर आपके पास बाउंड्री कंडीशन नहीं है, ओके, और बाउंड्री कंडीशन जीरो पे ही है, तो एक और ऑप्शन है, यू कैन फाइंड पी ऑफ एक्स एज इंटीग्रल जीरो टू वन, जीरो टू एक्स, नॉट वन, जीरो टू एक्स पी डैश एक्स डी एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंटीग्रल जीरो टू एक्स पी डैश एक्स डी एक्स, तो इससे फायदा क्या होगा समझना। ओके, हाँ, ये आप फिजिक्स में करते हो, राइट। सपोज पी डैश एक्स का इंटीग्रल आपको मिल रहा है यहाँ पे पी ऑफ एक्स प्लस सी, ओके, फिर वो बाउंड्री कंडीशन से आप सी की वैल्यू निकाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, पी ऑफ एक्स प्लस सी नहीं मिलेगा, फिर उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट आप रखोगे, तो वो पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ जीरो होगा। ओके, तो वो पी ऑफ जीरो इज नथिंग बट सी ओनली। ओके, क्योंकि वहां से आपको सी मिलता है, और वो तो लाइक दैट पता चल रहा है ना, एग्जैक्टली उसे कुछ और नाम देना चाहिए। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे पी ऑफ एक्स देख के कंफ्यूज मत हो, जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो, राइट। लेफ्ट साइड पे पी ऑफ एक्स है, यहाँ पे सपोज आपको एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, राइट, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो यहाँ से आपको ऐसे मिलेगा, राइट। बट लिमिटेशन क्या है, अगर मैं इंटीग्रल जीरो से एक्स यूज कर रहा हूँ तो मेरी इनिशियल कंडीशन जीरो की ही होनी चाहिए, बट यहाँ पे मैं इनिशियल कंडीशन कोई भी पुट कर सकता हूँ, जैसे हमने पी ऑफ वन और पी ऑफ माइनस वन रखा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, वेलोसिटी के लिए आप जीरो टू टी रखते हैं, यस, क्योंकि इनिशियल टाइम आप जीरो ही काउंट कर लेते हैं एट इनिशियल कंडीशन। इधर वो फ्री फॉल कर रहा है, राइट, या आप उसे मोशन इन टू डी पैराबोलिक फॉर्म में बॉल को फेंक रहे हैं, तो इनिशियली टी इक्वल टू जीरो। ओके, सो और वो आपने कब भी डिराइव किया था कि कैसे पैराबोला होता है 32, बट वो टाइम पे कुछ पता ही नहीं चला होगा कि ये पैराबोला का इक्वेशन भी है, राइट, जस्ट डायरेक्टली बोल दिया होगा कि ये पैराबोला का इक्वेशन होता है, तो डायरेक्टली एज्यूम दिस इज पैराबोला। वो 11th के स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, और 11th के एंड में तो पता चला अच्छा पैराबोला का इक्वेशन ये है। तो ये है आपका 11 12 का सब। बायोलॉजी वाले क्या करते होंगे? ओके, 32, if f and g are continuous function then find the value of, ओके, आई थिंक ये ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्जन में अच्छे से आया नहीं है, आई थिंक बीच में आपका साइन है, इंटीग्रल एल एन लैम्बडा टू एल एन वन बाई लैम्बडा। ओके, ये आपका एल एन लैम्बडा, ये एल एन वन बाई लैम्बडा, और यहाँ पे भी डिवाइड है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई फोर into f of x minus f of minus x divided by g of x square by 4 g of x plus g of minus x dx. So is independent of lambda, non-zero constant, zero or none of this. Let us check. Solution.
So if f of x and g of x are continuous function, so now integral ln lambda to ln 1 by lambda f of x square by 4 f of x minus f of minus x divided by g of x square by 4 g of x plus g of minus x dx. Is it clear? मतलब क्वेश्चन क्लियर? ओके, ln लैम्बडा से ln 1 अपॉन लैम्बडा ही है. चलो कैसे कर सकते हैं? एफ एंड जी कंटिन्यूस फंक्शन है. हाँ सर, कैन वी टेक एनी टू कंटिन्यूस एंड चेक? नहीं, पहले देख लेते हैं ना डायरेक्टली हो रहा है या नहीं. हाँ, फिर आप वो कर सकते हो विष्णु, राइट? पहले आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ln लैम्बडा और ln 1 अपॉन लैम्बडा, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है? कैन आई राइट ln 1 अपॉन लैम्बडा एज माइनस ln लैम्बडा? यस और नो? यस, लैम्बडा इनवर्स पावर आगे आ जाएगी. सो अगर आपके पास लिमिट माइनस ए टू प्लस ए है, हाँ, तो हमें पहले क्या चेक करना होता है? टेल मी. ओके, अगर आपकी लिमिट माइनस ए टू प्लस है, यस, ऑड एंड इवन, तो क्या मैं यहाँ पे ऑड एंड इवन चेक कर सकता हूँ? अंदर एफ और जी नाम दिया गया है, तो सपोज मैं इस फंक्शन को नाम दे देता हूँ एच. ओके, सो हियर h of minus x is equal to f of minus x square by 2, तो माइनस एक्स का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, x square by 4 डिवाइड बाई g of x square by 4, माइनस एक्स रख रहा हूँ तो माइनस एक्स का स्क्वायर x square by 4 f of x minus f of minus x, तो माइनस एक्स रख रहा हूँ तो f of minus x माइनस f of x डिवाइड बाई g of minus x plus g of x. Okay. Now, yes, tell me it is even or odd. सोचो, अभी चेक करो. ये तो अभी इधर माइनस का जमेला है ना, राइट? माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा. सो दिस इज योर माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स, यस और नो? क्योंकि ये तो सेम है, एफ सेम है, आपका जी सेम है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन सेम है, न्यूमिनेटर में जस्ट माइनस इंटरचेंज है. So it is minus h of x. So tell me, h is odd function or even? Odd. If it is odd function, what should be your answer? 0. So your answer is 0. That's it. Just ये आइडेंटिफाई करना था, राइट? तो नाम बड़े दर्शन छोटे या खोदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसे वाला, राइट? ऐसे छोटे छोटे बड़े क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, राइट? आराम से. क्वेश्चन 32. So after that 33, control V. Okay. Now can you see this question? Question number 33. The area bounded by, हाँ, और एक चीज, राइट, अगर वन नोट में आप ओपन करके नोट्स देख रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे सिंस विंडोज की थीम ब्लैक यूज कर रहा हूँ मैं, तो ये बैकग्राउंड ब्लैक है, वो एग्जैक्टली व्हाइट है, और जो मैं लिख रहा हूँ व्हाइट से, वो व्हाइट नहीं, वो एग्जैक्टली ब्लैक है, राइट? वो मैंने आपको दिखा भी था, सी. सो ये नाम देखो, ब्लैक पेन 0.7 mm. ओके, तो जब आप ये वन नोट में ओपन करोगे तो बैकग्राउंड व्हाइट दिखेगा, और ये जो मैं लिख रहा हूँ वो ब्लैक दिखेगा, पीडीएफ. बट जो ग्रीन है वो ग्रीन है, जो येलो है वो येलो है. तो व्हाइट बैकग्राउंड में जब आप देखोगे तो वो येलो दिखेगा ही नहीं, वो लाइट ग्रीन दिखेगा ही नहीं, यू कैन नॉट रीड. तो मेजोरिटी में पूरा व्हाइट ही यूज करता हूँ. ओके,
अब ये थोड़ा ये चीज है। ओके, तो इसको मैं कॉन्ट्रास्ट है, राइट। मतलब मैं ऐसा कोई कॉमन कलर फाइंड करने की कोशिश की मैंने कि जो ब्लैक और व्हाइट दोनों के लिए रहे, नहीं। ओके, तो ये कुछ रहेगा। तो ग्रीन कलर का जो मैं लिख रहा हूँ, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि ग्रीन का कम ही लिखूं। जैसे कि ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर हो गए, सॉल्यूशन हो गया, ओके, ये हो गया, बॉक्स हो गया, तो उतना चीज आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो। इज इट क्लियर? जैसे कुछ पता चलेगा फ्यूचर में हम कुछ यूज करेंगे, राइट। रेड एंड ब्लू आपको दिखा देता हूँ अभी। दिस इज ब्लू, ओके, एंड दिस इज रेड। इफ यू वांट आई कैन राइट रेड एंड ब्लू, वो दोनों पे अच्छा रहेगा, उधर भी अच्छा रहेगा। ओके, बट आई डोंट नो वो ब्लैक पे कैसा दिखेगा। इज इट गुड? रेड एंड ब्लू दोनों आपके सामने। इन रेड से पहले कुछ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ए टू बी। आपकी आईज को कम स्ट्रेन होना चाहिए। ओके, लाइट ब्लू उस पर नहीं दिखेगा, ट्राई कर चुका हूँ। जो हाईलाइट करता हूँ वो ब्लैक में नहीं दिखता है, एग्री, बट हाईलाइट करता हूँ वो एटलीस्ट वो लेटर्स हाईलाइट हो जाते हैं। ओके, और ब्लू, लाइट ब्लू व्हाइट में नहीं दिखेगा, राइट, वो मैं ट्राई कर चुका हूँ। ओके, और इवन इफ यू वांट एक दिखा सकता हूँ। दिस इज लाइट ब्लू। ओके, ये आपका लाइट ब्लू है। चलो, यस, रेड प्रोड्यूसेस सम स्ट्रेन, मुझे भी दिख रहा है। तो जल्दी जल्दी बोलो स्टूडेंट्स, अभी पढ़ना भी है। 33 में इज इट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? यस, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ऑरेंज। हाँ, अभी आज कलर से ही खेलने बैठे हैं ना, होली आ गई है। चलो लेट अस सी। ऑरेंज, रोज, लाइट ऑरेंज। ओके, दिस इज लाइट ऑरेंज। ओके, चलो, तो कौन सा रखना है कि ग्रीन और वो? ठीक है, नोट्स कौन कौन पढ़ रहा है वन नोट से? ओके, सो लाइट ब्लू आपको व्हाइट में नहीं दिखेगा। ओके, ओके, सो यस, विच कलर डू यू वांट? ब्लू? व्हाइट ही रखता हूँ, बट अगर पूरा व्हाइट रखूंगा तो मोनोटोनस हो जाएगा ना, राइट। ओके, चलो, सो यू कैन डू वन थिंग, राइट। हाँ, व्हाइट ही करते हैं। व्हाइट में सारे कलर्स होते हैं स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हो राइट, प्रिज्म से पूरा। क्या बोलते हो आप उसे? सारे कलर्स होते हैं व्हाइट में, पहचानो। ओके, इसको आप क्या बोलते थे? नहीं, प्रिज्म नहीं। हाँ, विबग्योर भी नहीं, ये पूरी फिनोमेना को क्या बोलते हो आप? हाँ, स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम, डिस्पर्सन और लाइट स्पेक्ट्रम। ओके, चलो, so the area bounded by y equal to greatest integer function sin nx by n, x equal to minus 2 pi by n, x equal to plus 2 pi by n, and x axis where n is greater than 1। तो पहले तो हमें इसका कर्व आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin nx by n आपको क्या क्या मिल सकता है। so let us analyze this। okay, so चलो, माइनस टू पाई बाई एन से प्लस टू पाई बाई एन में, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आपकी कैसे डिफाइन है? y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन एन एक्स बाई एन। अगर साइन एन एक्स बाई एन की वैल्यू समझो, माइनस टू पाई बाई एन से मैं शुरू कर रहा हूँ, राइट। इफ आई पुट हियर माइनस टू पाई बाई एन, तो एन एक्स आपका क्या हो जाएगा? माइनस टू पाई। साइन माइनस टू पाई आपका क्या हो जाएगा? राइट, वेयर एन इज ग्रेटर देन वन। ओके, सो माइनस साइन टू पाई वो आपका हो जाएगा जीरो। जीरो बाई एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो जीरो के लिए तो आपको जीरो ही मिलेगा, राइट। फिर टू पाई बाई एन रखोगे तो वो भी आपको जीरो मिलेगा। ओके, बट माइनस टू पाई से लेके प्लस टू पाई तक, ओके, सपोज दिस इज माइनस टू पाई, थोड़ा कंफ्यूजन है।
सो आप एंटी क्लॉकवाइज जो मैं पहले मैं सारे पॉइंट्स लिख देता हूँ, समझो 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2। ओके, ये आपका पूरा एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, सो -π/2, -π, -3π/2, -2π, आया ना? ओके, so -2π plus π/2 will give you -3π/2। ओके, तो साइन की अगर सारी वैल्यू में लिखता जाऊं, सिंस ये साइन nx है, तो हियर साइन nx, ये सारी वैल्यूज आपके nx की वैल्यूज है, राइट। साइन -2π will give you 0 and साइन -3π/2 will give you 1। ओके, तो 0 और 1 के बीच में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्या देगा? 0। यस और नो? राइट, समझो यहाँ पे पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऊपर से जा रहा है, और डिवाइड बाई n है, तो 0/n और 1/n, तो 0/5, 1/5, 2/5। ओके, वापस एक्सप्लेन करूँ? ओके, मुझे थोड़ी भूख भी लगी है, 5-10 मिनट का गैप ले लें। ओके, वापस पूरा समझाता हूँ क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा। ओके, सो इट इज 12:07 राइट इन माई लैपटॉप। सो लेट अस मीट एट 10:15, 8 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं। ओके, 1 मिनट तो इसमें चला जाएगा, 7 मिनट्स। ओके, सो यस, लेट अस मीट एट 10:15। ओके।